Welcome back, students. I am Dr. Amima Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning Management. I have been taking these sessions on marketing analytics. This is in the continuation of the customer analytics that we have covered in the previous session when we talked about the segmentation. Today in this session, I will be talking about one of the aspect of the segmentation, very similar to it, how we filter it. Then we will be moving towards target market analysis, and then how product positioning is done and perceptual mapping. तो बिफोर गोइंग अहेड इनटू कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, आपने अक्सर देखा होगा जस्ट सिंस वी आर इनटू एन एज ऑफ डिजिटलाइजेशन and with the advent of digitalization, with the advent in the era of internet, there are lot many options that are available on the internet. We as a customer have lot many choices and we are not sure of which one is better. So what happens, how we choose, be it a book, be it a movie to see, be it a book to study, be it a program, be it a product to choose from n number of options, it is the rating that we go through. So this rating helps in basically choosing and help in taking the product. What happens ki companies basically that are following this model of collaborative filtering are like amongst the Amazon, Netflix, then Spotify, LinkedIn, Facebook, YouTube. अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जब हम YouTube एक्सेस करते हैं या हम Amazon पे प्रोडक्ट्स, whenever we are going through the products on the Amazon or the watching videos on YouTube, we get lot many recommendations side by side. What exactly it is? It is a kind of basically recommendations that is available for the customers, which one to opt, be in terms of buying, be in terms of choosing to use the product. It just simply filters according to your needs. Now going back to the concept of collaborative filtering, as it is already written, it's a buzzword and method is used for to filter choices using collective intelligence of others people product choices. Please read it, it's very important. लिखा हुआ है buzzword है, यानी कि ये आजकल सबसे ज़्यादा चला हुआ है. Then यहाँ पे क्या होता है, filter होता है. फिल्टर हम करते हैं, देयर लॉट मेनी ऑप्शंस, हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर सर्चिंग एंड व्हाट अदर पीपल हैव सर्च्ड ऑन इंटरनेट. देन उनके कलेक्टिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अदर्स पीपल ऑप्शंस को यूज़ करके, दैट इज़ ऑफर्ड बिफोर यू, दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. देन इट इज़ क्या, कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग इज़ अ टेक्निक और मेथड टू प्रिडिक्ट user stays and find the items that a user might prefer on the basis of information collected from various other sources having similar taste and preferences. अगर हम इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, similar taste and preferences, टेक्निक और मेथड. फिर अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर्स जो कस्टमर्स हैं, वी हैव टू प्रिडिक्ट. कस्टमर एनालिटिक्स की भी बात हुई, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की बात हुई, लास्ट सेशन में हमने डिसीजन ट्री देखा. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसका, यूजर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हम क्या सेलेक्ट करने जा रहे थे, हम क्या ढूंढ रहे थे, और उसके बाद हमें बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी स्टार्ट गेटिंग लॉट मेनी अदर ऑप्शंस दैट आर सिमिलर टू आवर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. दैट कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. It takes into consideration the fact that if person X and person Y has certain reaction for some items, they might have the same opinion for the other items too. This happens, this is basically analyzing the behavior of people when it comes to opting or choosing the options that are available. This is basically known as कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. यानी कि दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली कुछ आइटम्स चूज़ किए. देन दे माइट हैव, मतलब कि ऐसा होता है कि it be it me and my friend, they have similar type of taste and preferences when we go and go for shopping. So when this is considered, that is known as collaborative filtering. How this has evolved, basically it is just because of, as I've already told you, because of internet. The web has made it easy to store purchasing history and preferences of thousands of people. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने परचेज किया, आपकी हिस्ट्री हुई, other people saw. We have seen even many a times on Myntra, other people saw what you saw even in the past, what you even scrolled down even in the past when it comes to choosing your dress on Myntra.
This is like very common, you must have experienced it when we zap on Myntra, we keep on searching on Myntra. तो हमारे पास लास्ट में आप खुद देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है जहाँ पे लिखा रहता है अदर सीन्स ऑप्शंस, राइट, कि आपने पिछली बार क्या चूज़ किया था, क्या चीज़ देखी थी. तो क्या है कि मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स का वो सारा डेटा वो अपने पास रिट्रीव करके रखा हुआ है, हिस्ट्री एंड प्रेफरेंसेस को रिट्रीव करके रखा हुआ है, एंड यूजिंग दैट इंटेलिजेंस दैट इज बीइंग ऑफर्ड बिफोर द कस्टमर्स एंड it is being recommended. The question is how to use the data to recommend product so that you like but didn't know you wanted. हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली हमें पता चाहिए था बट हमें पसंद था. फिर इफ यू एवर रेंटेड अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स recommendation, bought a book from Amazon recommendation, or downloaded iTunes from Genius recommendation, you have used a result generated by collaborative filtering. अक्सर ऐसा होता है ना कि अभी भी व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट कि जब हम मिंत्रा पे देखते हैं जो रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स आते हैं आपकी हिस्ट्री सर्च के बेसिस पे, जो आपने कीवर्ड्स डाले होते हैं, आपको रेकमेंडेड मटेरियल्स मिल रहे होते हैं. तो जब आप उसको ऑप्ट कर रहे होते हो उस चीज़ के बेसिस पे, आप उस चीज़ को परचेज कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ साइकिल में आप उसको इंक्लूड कर रहे होते हो. दैट इज़ नोन एज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम. ये किसके बेसिस पे हो रहा है? वो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम के बेसिस पे हो रहा है. इसमें दो की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक यूज़र बेस्ड होता है, एक आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होता है. वील सी अबाउट इट एंड देन वील गो इनटू एन एक्सेल ऑफ वन ऑफ द टाइप. What happens in user-based collaborative filtering? It's a technique to predict the items that a user might like on the basis of ratings given to the item by the other users who have similar taste and preferences by the target users. क्या होता है? यूज़र्स के बेसिस पे, जो सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रेटिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं. जब वो चीज़ सामने आती है हम उसके बेसिस पे आइटम्स प्रिडिक्ट करके हमारे पास आ रहा होता है. दैट इज़ नोन एज यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. Then let us see what is item based collaborative filtering. It is the recommendation system to use the similarity between the items using the ratings by the users. यहाँ पे हम जो items की similarity होती है, ratings होती है, उसके basis पे जब हम उसको choose करते हैं, opt करते हैं, that is known as item based collaborative filtering. Suppose for instance what happens कि अक्सर हमने देखा है कि हम I have taken the example, you can take the example of Bollywood movies, you can take the example of books that you opt to choose. I have taken an example like a Lincoln Hollywood movie. You want to know whether you would like it or not. You are not sure of it, राइट कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि नहीं आएगी. तो इन यूज़र बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग यू वुड लुक फॉर द मूवी गोवर्स whose rating of movies you have seen is similar to yours. आपने उनको देखा कि हो सकता है उससे उनके आइटम्स के प्रेफरेंसेस पता चल जाते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर मूवी का टाइटल देखा, उन्होंने कितनी किस हिसाब से अपनी रेटिंग्स दे रखी हैं, एंड देन इवेंचुअली यू ऑप्ट दैट. After having a heavier weighting to the most similar moviegoers, you use their ratings to generate an estimate how well you would like it. आप उनकी ratings को देख करके eventually you even tend to generate an estimate how you are going to like that particular movie, considering the fact what others have given the rates. Now let us see the example of 6 people who have rated on 1 into 5 scale, 1 से 5 scales में subset of 6 movies. I haven't taken any example name of any movie, but you can take it any type of movie you would want, be it a Hollywood, Bollywood, XYZ, depending on your choice and preferences. And then few people, these are again some assumptions or fictitious names that I have taken. You can take the name of your friends who basically want to opt for it and go for the movie. Now suppose you want to predict Gloria's rating for the movie. Gloria is one fictitious name which she has not seen. To generate a reasonable member based forecast for Gloria's rating for movies, let's proceed as follows. Simply क्या करना है, begin with Gloria's average rating of all movies that she has seen. उस बंदी ने जो जितनी भी मूवीज़ देख रखी हैं आपको उसके बेसिस पे रेटिंग्स प्रोवाइड करनी है. Then identify the similar people whose rating on movies seen by Gloria's is similar to that of Gloria's ratings. You have to even identify some kind of similarity in the ratings of the people who have already seen
that movie. Use the ratings of each person who has seen movie to adjust Gloria's average rating. Then what you have to see, use the rating of each person who has, आपको एडजस्ट करना है ग्लोरिया के एवरेज रेटिंग से. द मोर सिमिलर द पर्सनस अदर्स रेटिंग आर टू ग्लोरियाज, द मोर वेट यू गिव टू द ratings. Then eventually what you do is you give the more weight to the rating. Evaluating user similarity. There are many measures that is basically used to evaluate the similarity of the user ratings. It can be on the basis of the item based or the user based collaborative rating. You can define the similarity between two users to equal the correlation between their ratings on all the movies seen by बोथ द पीपल एक्स वाई जी, दैट इज दो लोगों के बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं, टू यूजर्स की बात हो रही है, तो यू कैन चेक ऑन द कोरिलेशन बिटवीन देयर रेटिंग्स ऑन द मूवीज एज सीन बाय बोथ द पीपल. देन व्हाट यू एग्जैक्टली डू इज रिकॉल इफ टू पीपल्स रेटिंग हैव कोरिलेशन नियर टू +1. what it is written, you have to check whether the correlation is near to +1. Then if one person rates a movie higher than the average, it is more likely that the other person will rate the movie higher than the average. ठीक है. And if one person rates a movie lower than the average, then it is more likely the other person rates the movie lower than the average. Means it goes in the same direction. If I have preferences, I give a good rating, people would also try to give good rating. If I have given a poor rating or low rating, eventually the other one also considering or seeing that rating would give the low rating. On the other hand, if two people's rating have a correlation that is near to -1, अभी हमने +1 वाली condition देखी थी, now we are seeing to -1, that if one person rates a movie higher than the average, it is more likely that the other person will rate the movie lower than the average. अगर किसी ने higher करा है than the average, the other one gives the lower than the average. And if one person rates a movie lower than the average, then it is more likely that the other person rates the movie higher than the average. Positive correlation tha, going in the same direction. If one is giving the positive ratings, the other one gives the positive ratings, whereas when it comes to negative correlation, that is -1. If one is giving the positive, the other one gives the negative rating, considering the fact. What we have to do is हमें Excel देखना है यहाँ पे. एक जस्ट एक्सेल में हमारा आई हैव ऑलरेडी फीडेड द डेटा. आई हैव बेसिकली सीन कि हाउ दे आर लाइक जेन, मिल, ब्रिटनी, फिल, ग्लोरिया एंड मिचेल, हाउ दे हैव बेसिकली देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मूवीज, राइट, एंड दे आर 6 पीपल. हमने रेटिंग दे रखी है किसने कौन सी मूवी देखी है और कंसिडरिंग ईच अदर्स फैक्ट. नाउ आई विल सी साइड बाय साइड कि किस हिसाब से हम अपने सेल्स में चल रहे हैं. इन सेल C16 and 17, type the cell names of any 2 movies. You can either give the name of the movie or you can just write movie 1 or movie 2. कॉपी द फॉर्मूला. यहाँ पे हमने इंडेक्स का फॉर्मूला मैच करके लगाया है फ्रॉम D16 to D17. हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी 2 मूवी लगाई और हमने इंडेक्स का फॉर्मूला ये लगाया हुआ है. यू कैन सी द फॉर्मूला अगेन, यू कैन सिंपली राइट इट. दैट इज़ हमने फ्रीज भी करे हुए हैं सेल्स, ताकि जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं सेम फॉर्मूला को, तो जो फ्रीज्ड हमारे सेल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, दैट डोंट चेंज. देन कॉपी द फॉर्मूला. दिस जो ये थर्ड वाला है, इसमें बेसिकली क्या है, इफ़ वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग ऑफ द मूवीज़ निकाल रहे हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इफ़ भी यूज़ है, इंडेक्स भी यूज़ है, इसमें मैच भी यूज़ है. प्लीज़ एंश्योर that you insert the formula very properly. If there is any confusion in the formula, the correct value would not come. इससे क्या निकलता है, हमारा जो हमें रेटिंग फॉर दी मूवीज़ चाहिए हमें, वो निकल के आ जाती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अभी तक के हमने ये ऊपर वाले जो सेल्स थे यहाँ पे हमने सिर्फ जनरल रेटिंग्स डाल रखी थी डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल हैव सीन एंड व्हाट अदर्स हैव रेटेड, एंड वी हैव ट्राइड कमिंग ऑन कि एग्जैक्ट हमें रिजल्ट्स मिले. उसके बाद जब हमें ये चेक करना था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द इफ फंक्शन लगा के कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ बेसिकली द मूवीज़ एज कंपेयर्ड बाय 2 पीपल, तो हमने
ये फॉर्मूला लगाया। देन उसके बाद कॉपी द फॉर्मूला, अब हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है कॉपी द फॉर्मूला दैट और भी लगा है टू एक्सट्रैक्ट ओनली द रेटिंग्स फ्रॉम यूजर्स हु रेटेड बोथ द मूवीज। अब हमें क्या करना है कि हमें वो फॉर्मूला वो एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यूज, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दो लोगों ने रिजल्ट्स में दोनों मूवीज को रेट कर रखा है। पहले वाले में हमारा हम एक बार और ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रेटिंग्स पता लगानी थी लोगों ने क्या कर रखी है, उसके बाद हमें वो वैल्यू निकालनी है। आप यू कैन सी कि लोगों ने दोनों मूवीज़ को रेट किया हुआ है, मूवी 2 एंड मूवी 4 की बात हो रही थी। फिर हमको ये देखना था कि कौन से ऐसे जो दो लोग हैं, हम सेम फॉर्मूला चाहते हैं बट हमने सेम फॉर्मूला नहीं किया, हमें सिर्फ यहाँ पे अभी रेटिंग्स पता लगानी थी। तो हमने अब ये वाला जो इफ़ वाला फॉर्मूला लगाया है D16 D17 के हिसाब से, एज इन कि जो इन दोनों में से लोगों ने दोनों मूवीज़ को रेट किया है, तो वी गेट दी वैल्यू। दिस इज़ हाउ वी हैव chosen. Then what happened in D22, we basically use the formula if error correlation none to compute the correlation between the selected movies. For instance, we have chosen movie 2 and movie 4. तो अब हम इसमें correlation का formula लगाएंगे to find out the correlation between the two movies. जब हमको ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं बेसिकली, हम उसके बाद कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। D18 से हमने लगाया हुआ है I18 तक के, D18 से I18 तक के जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वी गेट बेसिकली व्हाट, वी गेट द कोरिलेशन बिटवीन बोथ द मूवीज। नाउ वी वुड बी डूइंग इज हम टू वे डेटा टेबल का फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि हमें कोरिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ द मूवी पता चल जाए। अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आप देख रहे हो अदर साइड पे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ मूवी 1 को मूवी 4 के अगेंस्ट मैप कर रखा है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट आई वुड वांट इज आई हैव टू फाइंड आउट इंसर्टिंग द फॉर्मूला ऑफ डेटा टेबल। हम बता देते हैं आपको डेटा टेबल कैसे लगता है। यहाँ पे आपको जाना है डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस के बाद डेटा टेबल में जाना है। डेटा टेबल के बाद रो इनपुट सेल में हम C16 लेंगे और कॉलम इनपुट सेल में हम C17 इंसर्ट करेंगे। सिंस आई हैव ऑलरेडी इंसर्टेड द फॉर्मूला, आई विल शो इट टू यू हाउ इट इज। टेबल का जब हमने वो फॉर्मूला लगाया था तो ये C16 में इनपुट में हमने C16 में रो वाला लिया है और C17 इज कॉलम वाला वैल्यू। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं वी गेट दिस रिजल्ट एंड इवेंचुअली हम इसको ड्रैग करेंगे एंड वी गेट दी कोरिलेशन वैल्यू। देन कॉपी द फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट रेटिंग फॉर ईच मूवी। अब आप फॉर्मूला देखो, ये वाला, ये जो है मैच इंडेक्स, इसमें हमें क्या करना है, हमें सारी मूवीज़ का रेटिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। अभी यहाँ पे जब हम सारी मूवीज़ की रेटिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने इस तरीके से ऊपर जो हमने रेटिंग्स दी थी, दीज वर ऑल्सो कंसिडरिंग कि एक की रेटिंग्स देख करके फिर हमने एवरेज, वी ट्राई टू कम वेरी क्लोज टू ऑल द रेटिंग्स। उसके बाद हमें सारी मूवीज़ की रेटिंग निकालनी थी। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला इज इंडेक्स मैच D8 to I14 मैच C26 to C8 to C14 0 match 29. Please see it on the screen, it's very clearly written. You have to very clearly insert each and every formula because यहाँ पे हमें every single movie की rating को निकालना था। Now coming to copy the formula, if next वाले में करना है to extract each movie has the correlation। अब हमें next वाले कॉलम में क्या करना है, हमें सिमिलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाना है ताकि हमें सिमिलैरिटी पता चले हर मूवी की। यहाँ पे अब अभी आपने देखा जो कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लगाया था उसके बेसिस पे हमने अपना नेक्स्ट फॉर्मूला इंसर्ट किया है। जब हमने नेक्स्ट फॉर्मूला किया तो कोरिलेशन की मूवी की रेटिंग से दिया,
फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने लगाया है, कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम G29 टू G30। अब हमने नेक्स्ट फॉर्मूला जो लगाया है, एक मिनट, मूवी रेटिंग का हमने एवरेज निकाला हुआ है। यहाँ पे मूवी रेटिंग का मैंने एवरेज निकाला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे। एंड प्लीज नोट, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा रखा है। आप ये देखोगे तो आपको इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज़ दिखाई पड़ जाएंगी। जेन का हम जिस भी बंदे का हम चूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, वी हैव यूज्ड इट एंड इंसर्टेड दी फॉर्मूला ऑल टुगेदर। हम ग्लोरिया का ही चूज़ करके चलते हैं, मूवी रेटिंग हमने निकाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ एरर टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन ऑफ ईच मूवीज रेटिंग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप देख रहे हो हमने यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इफ एरर ABS F29, अगर सिमिलैरिटी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डायरेक्टली 0 वुड कम इन। देन व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। एडजस्टमेंट की बात है यहाँ पे, टू कंप्यूट द सेकेंड टर्म बेसिकली ऑफ द एडजस्टमेंट एंड लास्ट वाले में हम फाइनल रेटिंग को एस्टिमेट करेंगे। आप ये दोनों फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे हमने एरर का फॉर्मूला यूज़ किया है, जस्ट टू एस्टिमेट दी फाइनल रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। दिस हाउ वी डू इट, दिस इज जस्ट टू बेसिकली गो फॉर द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। हमने फाइनल वैल्यू अपनी इस तरीके से निकाली है। आइटम बेस्ड, दिस वाज बेसिकली द आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अ पर्सनस रेटिंग फॉर अ प्रोडक्ट बाय वेइंग most heavily a person's rating for product which is very much similar to the product in the question। basically क्या होता है कि अगर हम collaborative filtering की बात करते हैं, collaborating filtering is nothing but a kind of unsupervised learning, ठीक है। ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जो कि हम प्रिडिक्शंस के लिए करते हैं फ्रॉम द रेटिंग्स दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द पीपल। अगर हमने आपको अपना एग्जाम्पल दिखाया, उसमें जो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने मूवीज़ ली थी, कुछ 6 लोग लिए थे, उनकी जो वैल्यूज़ उन्होंने अपनी रेटिंग्स दी गई थी। इट वॉज बिट, येस आई अंडरस्टैंड कि आपको एवरीवेयर कौन सा चीज़ें को किस तरीके से कोरिलेट करना है, एंड फॉर दिस you have to be very clear in identifying and even inserting the Excel formula। कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ़ का फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, मैच का फॉर्मूला यूज़ कब करते हैं, इंडेक्स का फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बिफोर गोइंग डेप्थ इनटू द मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो बेसिकली एज आई वाज टेलिंग यू, इट्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरे की रेटिंग के बेसिस पे जब हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, दैट इज बेसिकली कैटेगराइज्ड अंडर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम। थैंक यू।